So, hi everyone, my name is Urvi and I'm gonna teach you the control and coordination chapter. In this chapter, we are gonna discuss about brain, how it functions, how it helps us to stay coordinated. We are also gonna see what roles our spinal cord plays in our reflex actions. Also, along with this, we are gonna see what happens when plants make movement, like what movement they grow towards and what movement they make due to the response in due to the stimulus in their environment. Also, we're going to study about the plant hormones and human hormones altogether. And I'm going to make sure that if you're going to stay till the end of this video, I'm going to make sure whatever the questions you get in your exam, you're going to score full marks for this chapter. So stay tuned till the end. So let's move on with our chapter, control and coordination. Yes, the main aspect of this chapter is the spinal cord and the brain in humans. Yes, you all know this brain and spinal cord comprises of our central nervous system. This creature, this beautiful thing resides inside of us और हमारा सारा चीज daily activity, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, everything, यहाँ तक कि breathing, everything is connected, is coordinated and ordered or just reflected by this creature. ये चीज हमें बताती है कि आपको next क्या करना है, आगे किस तरह से respond करना है. So building upon this, we're gonna talk about our brain. हमारे brain के 3 हिस्से होते हैं. The first forebrain, the second midbrain and the third hindbrain. If we take a longitudinal section, इस ब्रेन को अगर हम हाफ में कट करेंगे, then these are the things जो आपको एक ब्रेन के अंदर दिखाई देती है. So हमारे forebrain में the activities that our forebrain do is thinking, speaking. जैसे आपके एग्जाम पेपर्स आ गए and then you have to think, yes, उर्वी मैम ने सिखाया था फटाफट लिखना है. ये किया आपके forebrain ने काम. इस forebrain का एक दूसरा नाम भी है जो है cerebrum. This name is very important kids and एग्जाम में कुछ नहीं आया, बस लिख दिया ब्रेन का first part is cerebrum, 1 mark straight away in your pocket, you're gonna get it. Then next is the midbrain, जो आपकी involuntary activities है जैसे कि sneezing, coughing या anything involuntary, even breathing या heartbeat that is there. ये आपके midbrain and hindbrain, they connectively perform all this involuntary activity of yours. हाइंड ब्रेन का एक और फंक्शन है कि वो आपका बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है कि लाइक मुझे ऐसे खड़े रहना है, मुझे ऐसे खड़े रहना है, वट एवर वे यू गोना स्टैंड. आप साइकिल भी चला रहे, यू गोना राइड इट इन वन लेन, एक साइड से जाओगे या दूसरे साइड से जाओगे, दैट इज ऑल कनेक्टेड बाय योर कमांडेड बाय योर हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन को हम सेरिबेलम भी कहते हैं, मुश्किल भाषा में इसे सेरिबेलम कहा जाता है. Okay? Also, there are other parts in our brain जैसे कि hypothalamus और pituitary glands. ये सारा काम करते हैं आपके हार्मोन सेक्रीशन का. We'll come to that part later. Just for the sake, हमारे ब्रेन में हार्मोन ग्लैंड्स और pituitary glands यहाँ होते हैं जो हार्मोन सेक्रीशन का काम करते हैं. Moving on. Yes. द नर्वस सिस्टम. अभी हमें पता है कि ब्रेन हमें कमांड देगा क्या करना है क्या नहीं करना है, बट ब्रेन को हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कहाँ से ये सारे इंफॉर्मेशन देते. सो द मेजर पार्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज द नर्व सेल और न्यूरॉन. इस न्यूरॉन, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन एग्जाम, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर. सो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स कंप्राइजेस ऑफ द डेंड्राइट. डेंड्राइट से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, वट एवर योर सेंस ऑर्गन्स फील, लाइक इफ यू गोना टच अ हॉट वेसल और एनीथिंग लाइक दैट, your sensory organs are gonna tell, the dendrites are the ones who are gonna collect that information. Soma is nothing but the cell body. जैसे नॉर्मल सेल में सेल साइटोप्लाज्म होता है, न्यूरॉन्स में सोमा होता है. देन एक्सॉन इज द मेजर पार्ट जहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होता है. This axon thing is made up of myelin sheath. जो बॉक्स दिख रहा है आपको छोटे छोटे, those are the myelin sheath और उसके अंदर जो डॉट्स है those are the Schwann cells. Okay. Then जो नर्व, चलो सेंसरी इम्पल्स जो है यार स्टिम्युलस जो है वो कैरी तो कर दिया, बट देन मैसेज पास तो करना है, मैसेंजर को देना भी तो है. So that message is transmitted from the nerve ending to the another neuron.
अब वो कैसे ट्रांसमिट होता है ये भी हम देखेंगे. दिस फोकस ऑन दिस फोटो नाउ. ये है हमारा न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड. So, जब भी one neuron passes another neuron, this is the major thing that happens. Let's say, for example, this is our neuron 1, N1, and this is our neuron 2, N2. So, neuron 1 is giving the information to neuron 2, but they are not connected. As you'll see in this diagram, they are not connected to each other. They are in close proximity to each other कि एक दूसरे के इतने नजदीक होते हैं कि इंफॉर्मेशन इजीली ट्रांसफर हो सकती है. जस्ट लाइक दैट न्यूरॉन 1 विल सेक्रीट सम केमिकल्स जो न्यूरॉन 2 अब्सॉर्ब कर लेगा. सो वट एवर द केमिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2 उसको पढ़ के समझ के इट विल ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन. फिर ब्रेन आपको मैसेज सेंड करेगा, द कमांड देगा कि आपको उठना है, हाथ हटाना है, बैठना है, वट एवर द रिएक्शन और द रिस्पॉन्स टू दैट स्टिम्युलस इज टू बी. और ये जो गैप होता है बिटवीन द गैप बिटवीन न्यूरॉन 1 एंड न्यूरॉन 2 इज कॉल्ड एज सिनेप्स. ओके, क्लियर? और द impulse which is transferred from neurons is also called as electrochemical impulse. क्योंकि जो न्यूरॉन का इंटरनल इम्पल्स होता है फ्रॉम डेंड्राइट्स टू न्यूरॉन एक्सॉन डेंड्राइटिक सेल तक पहुंचने के लिए इन दैट सेल देयर इज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स गोइंग ऑन. बट जैसे ही वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है टू अनदर न्यूरॉन, वो जाएगा केमिकल्स के फॉर्म में. सो दैट बिकम्स योर केमिकल इम्पल्स. सो होल दिस प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स. मूविंग ऑन, कुछ इंफॉर्मेशन लाइक एज वी नो देर आर सम इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन तक पहुंचते भी नहीं है. कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स लेना होता है. जैसे कि इन दिस डायग्राम इट इज शोन दैट यू आर टचिंग अ हॉट वेसल और वो इंफॉर्मेशन इज जस्ट गोइंग टू योर स्पाइनल कॉर्ड, वो ब्रेन तक भी नहीं पहुंच रहा है. सो फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, आपका स्पाइनल कॉर्ड ही आपको कमांड देगा. क्यों? बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसे हम शॉर्ट पाथवे भी कहते हैं ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. और इसमें क्या होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है जहां से आपके सेंस ऑर्गन से, इफ आई टच अ हॉट वेसल, सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन से सारे सेंसेस इंपल्सेस ट्रांसफर हुए टू माई स्पाइनल कॉर्ड. बट नाउ देर इज नो टाइम. मैं ब्रेन को बताऊं कि ब्रेन प्रोसेस करे, आफ्टर दैट द ब्रेन विल रिस्पॉन्ड कि बाबा हाँ तू हाथ हटा. स्पाइनल कॉर्ड बोलता है इतना टाइम नहीं मेरे पास, आई एम गोना डू इट माई वे. सो स्पाइनल कॉर्ड विल ट्रांसमिट द ऑर्डर. वो ऑर्डर देगा मोटर न्यूरॉन्स को. ये हो गया जहां पे उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया, दैट इज द रिले न्यूरॉन. उसका स्पाइनल कॉर्ड का इंफॉर्मेशन द ऑर्डर वॉज कलेक्टेड बाय मोटर न्यूरॉन. फिर मोटर न्यूरॉन बोलता है मसल्स को, ये मसल्स इन आवर आर्म जिसे हम बोलते हैं इफेक्टर मसल, वो मसल को बोलता है. एंड देन इट इज लाइक कि हाँ बाबा हाथ हटा लो, अभी इट इज टू हॉट फॉर यू टू टच. इस शॉर्ट पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. The difference between reflex action and reflex arc is that in reflex arc the short pathway is followed and plus the commands are given by the spinal cord. Okay, so building on this, अब हमने बात कर ली है हमारे ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की. लाइक दीज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स. इतना इंपॉर्टेंट काम, ब्रीदिंग, हार्ट का जो बीट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जिंदा कैसे रहोगे अगर हार्ट बीट नहीं किया? So if इतनी important चीजें, these delicate things are performing, इनको protection तो चाहिए ना कुछ ना कुछ. So how do you think, what is the protection that they are getting? Even हम घर पे गोल्ड या पैसा रख दे, we're gonna keep it safely एकदम अच्छे से. Why are we not gonna protect our organs? और main importantly, brain desiccate नहीं होना चाहिए. What is the fluid around the brain? So we're gonna see that. ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है, दैट मैटर इज सराउंडेड बाय अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या जिसे हम CSF भी कहते हैं. दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन फ्रॉम गेटिंग डेसिकेटेड.
ब्रेन को भी तो पानी चाहिए ना, अगर बॉडी को 70% पानी चाहिए तो व्हाट इज योर ब्रेन गोना डू विदाउट वाटर? डेसिकेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। बट पानी से तो क्या, चलो डेसिकेशन हो गया, लेकिन उसको हार्ड कवरिंग प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। हम हर बार सर फोड़ते, अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मुझे तो नहीं आता, सर फोड़ा, लग गई तो ब्रेन को, ऐसे थोड़े ना लगता। सो दैट इज व्हेन योर क्रेनियम या स्कल जिसे हम कहते हैं, स्कल का ये वर्ड क्रेनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कुछ नहीं लिखा, क्रेनियम लिख दिया साइंस लैंग्वेज में, 1 मार्क स्ट्रेट इन योर पॉकेट। ओके, सो स्कल protects your brain from very like whatever it hits या anything, very hard covering, बहुत अच्छे से आपका ब्रेन बहुत सेफ है वो स्कल के सॉकेट में। ओके, मूविंग ऑन टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वी ऑल नो दैट इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा बैकबोन जिसे हम कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को हम बैकबोन से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, ऑल्सो जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो सिर्फ डेसिकेशन से ही नहीं बचाता, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन फ्रॉम शॉक अब्जॉर्प्शन। कभी कुछ चीजें होती है विच वी डोंट रियलाइज, इट इज लाइक ब्रेन को इट गिव्स स्ट्रेस, तो शॉक अब्जॉर्प्शन जो होता है दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चलो, अब तो ये हो गई ज्ञान की बातें कि सारा थियोरी पढ़ा दिया, वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो एग्जाम में लिखना है। So what about the question and answers? What type of questions and what are the answers that you're gonna see? ये हम देखते हैं यहाँ पर question and answers। तो अब you're gonna ask the first question कि what is the difference between reflex action and walking? तो जिनको पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो अपने कमेंट्स और बता दो हमें। But in the meantime, the action, the reflex action of is a voluntary action, मतलब जो आप अपने मर्जी से, आपको पता है कि I'm gonna react, I'm gonna have this reaction to this action. हाँ, some of them are very involuntary, but that is also known by your brain. On the other hand, walking is voluntary action which requires our thinking and in control. मतलब thinking कहाँ आ गया? cerebrum में आ गया, cerebrum, forebrain, याद आया? And then control आ गया cerebellum में, hind brain। जैसे walking, straight path में walk करना है, आड़े टेढ़े walk करना है, like left and right walk करना है, that is the part that is controlled by your brain। बाकी reflex action is the rapid and automatic response। कुछ नहीं लिखा आंसर में, सिर्फ reflex action, rapid and automatic लिख दिया सिर्फ, और walking के बाजू में voluntary और requires thinking और control लिख दिया। full 1 mark in your pocket, 1 mark 2 mark whatever this question is, full marks in your pocket, और highlight कर दो तो क्या एग्जामिनर को दिख जाएगा कि हाँ भाई हमने लिखा है, हमें पता है। Then next question is what happens at synapse between two neurons? अब हमने बता दिया 2 न्यूरॉन्स है, सिनेप्स हो रहा है, गैप है, दे आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी बट दे आर नॉट जॉइंट, ऐसा टच नहीं हो रहे वो लोग, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी और केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो इसमें आप बहुत इजीली लिख सकते हो कि पहले तो सिनेप्स, मैडम को बता दो कि सिनेप्स क्या है, उन्होंने पूछा है बट फिर भी, द सिनेप्स इज द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। एट द सिनेप्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूरॉन 1 का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है दैट इज कन्वर्टेड, दैट इज रिलीज्ड बाय केमिकल्स, जो न्यूरॉन 2 हमारा अब्सॉर्ब करने वाला है। सो इजीली यू गेट दैट द इजीली द गैप इज क्रॉस्ड, इसे हम कहते हैं like the and so on and so forth, वापस से वो केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, इफ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body? ये बहुत ही इजी आंसर है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता दो। I'll wait for you guys for 2 minutes to reply। बोर्ड पे नहीं लिखना। So जिन्होंने भी आंसर दिया है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेरिबेलम। यस, द हाइंड ब्रेन भी लिखा है तो भी चलेगा, बट रिमेंबरिंग सेरिबेलम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दिस टर्म इज गिवन टू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बहुत ही कॉमन हो जाता है, सेरिबेलम इज व्हेन यू नो कि हाँ मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है कि हाँ हाइंड ब्रेन को सेरिबेलम बोलते हैं। मूविंग अहेड, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन इंसेंस स्टिक? अगरबत्ती,
घर में मंदिर पूजा या किसी भी जगह पे अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक जलाते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है? फ्रेग्रेंस, करेक्ट, उसकी फ्रेग्रेंस, बट फ्रेग्रेंस इज इन द एटमॉस्फेयर, हवा में है, वी आर ब्रीदिंग, तब समझ में आ रहा है. सो व्हाट हैपेंस, द स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक रीचेज आवर नोज, नाक, स्मेल, ब्रीदिंग वहीं से हो रही है. तो नोज में ना जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, दैट डिटेक्ट्स द इंफॉर्मेशन और जाके ब्रेन को बता देते हैं. कौन सी वाली ब्रेन को? फोर ब्रेन को. यही पे तो है सारा थिंकिंग या सेंसिंग, प्रोसेसिंग, सारी चीजें. तो फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है और बताता है कि भाई अगरबत्ती का स्मेल आ रहा है, कोई दूसरा स्मेल नहीं आ रहा है. सो सॉर्टेड. किसी को अगर ये आंसर्स नोट डाउन करने हैं तो आई विल वेट फॉर यू गाइस फॉर 2 minutes. ओके, अदरवाइज पॉज करके देख सकते हो. ओके, सो ब्रेक खत्म, नोट कर लिया, आई होप सबने नोट कर लिया होगा ये. मूविंग अहेड, 5th क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज आस्किंग व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन. अब रिफ्लेक्स एक्शन में एज वी नो ब्रेन डज नॉट पार्टिसिपेट, बट ब्रेन को ऑफेंड नहीं होना है. ब्रेन विल नॉट बी लाइक आई एम बीटिंग योर हार्ट, आई एम मेकिंग यू ब्रीद. नहीं, तेरा जिंदगी मेरे पे चल रहा है, बट इट इज फाइन. द ब्रेन इज गोना गिव क्रेडिट टू द स्पाइनल कॉर्ड बिकॉज he does his job यहाँ पे. तो we'll just write in our answer that brain has no direct involvement in reflex action. It is mainly controlled by the spinal cord. And these actions requires thinking and very quick action. As we know कि information for the brain to reach, recollect and respond बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. Although all of this is in milliseconds, हमें पता भी नहीं चलता and it goes like this, like this, like this. But still उससे भी शॉर्टर टाइम स्पैन में हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी को जवाब देता है कि भाई तू ये कर, रिमूव योर हैंड, इट इज हॉट, यू गोना गेट बर्न. सो दैट इज व्हाई वी गोना गिव फुल क्रेडिट टू द स्पाइनल कॉर्ड इन दिस आंसर एंड वी गोना से कि नो, ब्रेन हैज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, समझा. सो लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जहां हम बात करेंगे अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. नाउ वी नो कि प्लांट्स के पास तो कोई नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, टिश्यूज या ब्रेन, कोई भी चीज नहीं है. तो हाउ इज द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हैपनिंग, और अगर हो भी रहा है तो व्हाट आर वी गोना डिस्टिंग्विश इट ऑन द बेसिस ऑफ. सबसे पहला एग्जांपल, वी आर गोना टॉक अबाउट द मूवमेंट इन प्लांट्स. तो कुछ कुछ मूवमेंट्स प्लांट्स में ऐसे होते हैं दैट इज नॉट इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ, दैट इज जस्ट विद द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. नाउ स्टिमुलाई इज समथिंग जो हमारे आसपास में होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मिमोसा प्लांट. ओके, इसको अगर आप टच करोगे ना, इफ यू गोना टच दिस प्लांट, उसका जो लीव्स होता है दैट ड्रूप्स, वो फोल्ड हो जाते हैं लीव्स. क्यों फोल्ड होते हैं? इन एक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. ये प्लांट को ऐसा लगता है कि ही इज गोना ब्रेक मी और समथिंग लाइक दैट. इफ यू टच दैट प्लांट, वो प्लांट के लीव्स बंद हो जाते. बट इस मूवमेंट को वी डोंट क्लासिफाई दिस मूवमेंट एज ग्रोथ. इस मूवमेंट को वी आर जस्ट गोना से दैट इट इज इन रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस. जो भी उसका एक्सटर्नल एनवायरमेंट उसको स्टिम्युलस दे रहा है, लाइक whatever the if I'm touching this plant, वो प्लांट उसको सेंस कर पा रहा है कि yes something is touching me or somebody is hitting me, so it's gonna fold. बट इससे ये लीव्स ग्रो नहीं हो रहे, ना प्लांट का कोई ग्रोथ हो रहा है. सो दिस इज नॉट क्लासिफाइड एज द मूवमेंट इन ग्रोथ. मूवमेंट अकॉर्डिंग टू ग्रोथ क्या होता है, दैट वी आर गोना टॉक. अब जैसे कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे एक सीड का. When you grow a sapling, एक प्लांट आप लगाते हो, सीड लगाते हो, सीड के रूट्स ग्रो होते हैं, रूट्स ग्रो होते हैं, शूट ग्रो होता है. तो दैट मूवमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ. बट द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई इज वेरी वेरी क्विक. यहाँ पे जैसे इफ यू गोना टच द मिमोसा प्लांट, इट्स गोना फोल्ड. वो ऐसा सोचेगा नहीं बाबा मेरा रूट बढ़ रहा है, शूट बढ़ रहा है, मेरे को लीव्स बंद करना है, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. सो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई. और जो सीड वाला एग्जाम्पल है, दैट इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. वो सीड प्लांट में ग्रो हो रहा है. ओके, नाउ ग्रोथ भी बहुत अलग तरह से होते हैं प्लांट्स में. दैट इज
depending with respect to gravity, with respect to water, with respect to chemicals. So जैसे कि in this diagram, if you're gonna focus, जो roots है they are growing towards the gravity, नीचे की तरफ grow होते हैं roots usually, and shoot, that is the stem, leaves, etc., that is growing away from the gravity. So the term like with respect to the plants जो भी growth होते हैं उसे हम tropism कहते हैं. Which is growth of plants according to stimulus, उनके आसपास का जो environment है उसके according plant का growth. So now since it is gravity, तो उसे हम geotropism कहते हैं. Remember the term geotropism, it is very important. Gravity के, if you're gonna write, if plants grow towards gravity, plants may grow away from gravity, ऐसे words नहीं लिखने हैं. You have to use the correct word, that is geotropism. If plants roots, plants के roots जो होते हैं that grows towards the gravity, तो उसे हम positively geotrophic कहते हैं. एंड शूट यानी कि स्टेम जो होता है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होता है, दैट इज इट ग्रोज अपवर्ड्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, तो उसे हम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं. सेम इन बिल्डिंग ऑन दिस, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर और केमिकल्स. उन टर्म्स को हम हाइड्रोट्रॉफिक या फिर कीमोट्रॉफिक भी कहते हैं. सो लेट्स गेट बैक टुगेदर. वापस से, जियोट्रॉफिज्म इज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी. ओके, एंड हाइड्रोट्रॉफिज्म इज growth of plants with respect to water. Hydro means water, जहां पानी होगा वहां grow होगा. And in some plants again same chemicals. Chemo stands for chemicals. तो growth of plants with respect to chemicals, जिस तरफ chemicals होंगे उस तरफ they'll go. Otherwise chemotaxis, the movement of pollen towards the flower, ovary. Okay, moving on. कुछ प्लांट्स लाइक इफ यू कंसिडर द सनफ्लावर, ये देख रहे हो ये फोटो, दिस इमेज, इसमें द शूट्स, दैट इज द प्लांट के जो स्टेम लीव्स वगैरह होते हैं, दे आर ग्रोइंग इन डायरेक्शन ऑफ द सन. दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल की ग्रोथ ड्यू टू मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. ओके, मूविंग ऑन. अब प्लांट्स में भी देर आर हॉर्मोन्स जो प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं. सो इफ वी गोना स्टडी अबाउट द हार्मोन्स इन प्लांट्स, सबसे पहले आता है ऑक्सिन. ऑक्सिन इज वन ऑफ द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स ऑफ द प्लांट्स. ऑक्सिन इज वन ऑफ द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स ऑफ द प्लांट्स. तो ये क्या करता है, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन बोथ, दीज बोथ हॉर्मोन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. मतलब जैसे कि ये सीड से रूट, शूट, सैपलिंग, प्लांट, ट्री जब तक बढ़ते हैं तब तक दीज आर द हॉर्मोन्स दैट आर इन एक्शन, प्रमोट ग्रोथ. देन वी हैव साइटोकाइनेंस. Cytokinins promote cell division. Plants के leaves, as we know, metastasis है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे regions है where the cell division goes on. तो वो cell division का काम करता है cytokinins for promotion of cell division. Okay, same just like that. अभी so cytokinins का हो गया, that promotes cell division, that is also a part of cell growth only.
Then moving on, abscisic acid. Abscisic acid is a growth inhibitor. ये growth को inhibit करता है. Inhibit as in रुका देता है. Like at some point you're gonna have to stop growing. Like seed है, sapling बना, plant बना, झाड़ बना, okay, that is fine. But then you have to stop. How much you're gonna grow? That is when abscisic acid comes. ओके सो चार हमने पढ़े, चार हॉर्मोन्स प्लांट के जो जिनमें से दो होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, फटाफट ऑक्सिन, जिबरेलिन्स. एंड देन सेकेंड वी स्टडीड जो हार्मोन सेल डिविजन में हेल्प करता है प्लांट के, दैट इज साइटोकाइनेंस. और थर्ड ग्रोथ रुकाने के लिए, दैट इज ग्रोथ इनहिबिटर, दैट इज एब्सिसिक एसिड. कूल. सो मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स. ऑफ कोर्स आपको तो वही चाहिए. So the question and answers for plants. पहला ही क्वेश्चन देख लो, what are the plant hormones? अभी पढ़ा ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड. वही लिख दो सारे एग्जांपल्स. Starting with plant hormones are the fluid which are secreted within the plants. Obviously plant के hormones है वो खुद ही secrete करेंगे. So we're gonna write what are the plant hormones और उसे कहा क्या जाता है. So fluids secreted within the plants are also called as phytohormones. This word is very important terminology. Exam में कुछ नहीं लिखा, hormone fluid secreted by plants known as phytohormones. Underline कर दिया phytohormones को, straight 1 mark in your pocket. फिर plant hormones regulate growth and development of plant. Obviously जो भी है हमारे ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस, जिबरेलिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ they are in development of the plant. ना develop तो हो ही रहा है plant from a seed to sapling to plant to the tree. So the example of the plant hormones given over here are auxin and gibberellins because these are the two growth promoting hormones हमारे. If you recall, ये दोनों हमारे growth promoters है. You can also write about cytokinins and abscisic acid. नोट कर लो ये आंसर अगर नोट करना है तो. आफ्टर दैट वी कैन मूव अहेड. नेक्स्ट इज हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टूवर्ड्स द लाइट. अब ये सवाल क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिमोसा जो हमने लिया था, आई टोल्ड यू कि हम इफ वी टच द मिमोसा प्लांट का लीव, वो लीव्स ड्रूप हो जाते हैं, मतलब फोल्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. एंड एक दूसरा सनफ्लावर का एग्जांपल ले लो, जहां सन जाता है इट ग्रोज इन दैट डायरेक्शन. या कोई भी नॉर्मल प्लांट का जो शूट होता है दैट ग्रोज टूवर्ड्स द सन, ये हमने डिस्कस किया था. तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि तेरे जो सेंसिटिव प्लांट है उसका जो मूवमेंट है, डिफरेंस बिटवीन दैट एंड द मूवमेंट ऑफ द शूट टूवर्ड्स द लाइट, जो स्टेम टूवर्ड्स द लाइट ग्रो होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सो वी आर गोना से देम द मूवमेंट्स ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स आर टच सेंसिटिव. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब वो जो लीव्स फोल्ड हो रहे हैं उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, इट्स जस्ट डिपेंडेंट ऑन द टच. अगर कोई उसे टच करेगा तभी ही वो फोल्ड होगा, उसके अलावा इट इज ओपन. बिल्डिंग ऑन दैट फिर वी विल राइट while or anything continuation to that, the movement of the shoot, जो stem है, leaves है, plant का जो ऊपर वाला जो भी part है, that grows towards the light, that is known as phototropism. The growth of plant towards the light, phototropism. ठीक है, sorted. ये आंसर समझ में आ गया सबको. Next is give an example of a plant hormone that promotes growth. दो है, कोई भी एक लिखा, any two, anyone, whatever they ask, लिख दो. फटाफट बताओ, ऑक्सिन और दूसरा वाला जिबरेलिन्स. ओके, moving ahead. How do auxins promote the growth of a tendril around a support? अभी ऑक्सिन तो है ग्रोथ प्रमोटर, दैट वी नो. टेंड्रिल क्या है? क्रीपर्स पता है?
द प्लांट दैट ग्रोज विथ सपोर्ट, अगर कहीं पे रॉड लगा दो, ग्रेप प्लांट दैट इज ऑल्सो क्रीपर, या उसकी टेंडल्स जो उसके वेन्स होते हैं वो रॉड के अराउंड ऊपर ग्रो होंगे या किसी झाड़ का सपोर्ट लेके ऊपर ग्रो होंगे. सो क्वेश्चन पहले समझना, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन का मतलब समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड अ सपोर्ट? So we are going to write, when a tendril comes in contact with any support, the part of a tendril in contact with that object does not grow. मतलब वो ग्रो होता है but it doesn't grow very rapidly. See, उसके आगे if you read I've written does not grow as rapidly as the part of the tendrils away from that object. जैसे हमने सहारा लेके बैठे, आई एम नॉट गोना ग्रो, हाँ ठीक है ना, अभी तो 10th है, 12th आएगा, उसके बाद करियर प्लानिंग करेंगे, करियर गाइडेंस वाले आएंगे या वॉट एवर. इफ यू आर गोना रिलाई ऑन समबडी टू सपोर्ट अस, वी आर नॉट गोना ग्रो. बट इफ वी आर गोना प्लान खुद से कि हाँ चलो सपोर्ट नहीं लिया, वी आर ग्रोइंग, वी आर गोना ग्रो रैपिडली. दिस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स. ये हमारा ऑक्सिन्स जो ग्रोथ प्रमोटर है वो डिसाइड करेगा कि व्हेन यू हैव टू ग्रो. अगर तुम सपोर्ट लेके ग्रो कर रहे हो यू गोना टेक टाइम, क्योंकि मे बी दैट पार्ट इज नॉट अराउंड, या उसे रीच करने में द हॉर्मोन्स विल टेक टाइम. देन लेस ऑक्सिन occurs on the side of contact as compared to the free side. As a result, auxins promote growth on the free side and the tendrils coil around the support. Okay, so जो free side है ना वहां पे auxins grow हो रहा है. So tendrils they are also smart कि चलो मैं एक साइड से support नहीं लेता हूँ, I'll grow, I'll coil around this rod, तो मेरे हर साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिन्स आ जाएगा एंड आई कैन इजीली ग्रो. तो ये आंसर नोट कर लो, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू इन दी एग्जाम्स. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोफिज्म. मैंने आपको बताया था हाइड्रोट्रोफिज्म इज ग्रोथ, मूवमेंट और ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. यस करेक्ट, हाइड्रो मीन्स वाटर. सो इसमें बहुत इजी एकदम सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, वेरी सिंपल. टेक 2 बीकर्स या 2 कोई भी कंटेनर्स ले लो, एक में पानी भर दो, दोनों को लेबल लगा दो पहले, लेबल ए लेबल बी, विद वाटर विदाउट वाटर. जिसमें पानी भरा एक ही में भरना, एक ही कंटेनर में, एंड द अदर कंटेनर विल बी एम्प्टी. फिर इन दोनों को ना आप एक पेपर पाइप से कनेक्ट कर दो लाइक अ ब्रिज ओवर हियर. जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया है, दिस ब्रिज कनेक्ट द कंटेनर, कनेक्ट द 2 कंटेनर विद अ ब्रिज. और ये ब्रिज के बीच में ना जर्मिनेटिंग सीड्स आते हैं, जो आपके प्लांट ग्रो करने के जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वो आप ऐड कर दो. फिर थोड़े दिन के लिए ना इंक्यूबेशन के लिए रख दो, इंक्यूबेशन एज इन लेट इट ग्रो. आफ्टर सम टाइम यू आर गोना सी दीज सीड्स, ये जो सीड है दैट विल ग्रो इन डायरेक्शन टूवर्ड्स द वाटर. So that we are gonna consider as hydrotrophism. अगर आपको पूछा गया है कि design an experiment with respect to demonstration of hydrotrophism, this is what you're gonna write. इसका अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो I'll just read it out. I'll explain it to you. Take 2 small beakers, label them as A and B. Fill the beaker A with water. Now make a cylindrical shaped roll from filter paper and keep the bridge between the beaker A and beaker 2. Filter paper क्यों लिया है? Because in filter paper there are cellulosic contents जो plant के growth के लिए support करते हैं. Okay? Then as shown in the figure, यहाँ हमने देख लिया drawing में पहले ही कि these are the beakers जो लिए हैं A and B, उसको हमने salt bridge से connect किया है. That's what he is saying. Then अटैच अ फ्यू जर्मिनेटिंग सीड्स, वो भी कर दिया हमने. एकदम पाइप हमारा जो ब्रिज है उसके सेंटर में हमने जर्मिनेटिंग सीड्स लगाया है हमारे. एंड दैट ब्रिज शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि सीड्स जर्मिनेट होगा तो दिखेगा कहाँ पे. इफ इट इज ग्रोइंग, वेयर हाउ आर यू गोना विजुअलाइज इट कि हाँ मेरा सीड ग्रो हुआ है एंड इट इज इन द रीजन जहाँ पे पानी है, इट्स ग्रोइंग टूवर्ड्स द वाटर. नाउ
कवर इट विथ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर, उसको कवर कर दो सो एज टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन या वाटर इवेपोरेशन, एनी थिंग्स लाइक दैट टू रिटेन द मॉइस्चर. हमने कवर कर दिया, मॉइस्चर रिटेन हो गया. ऑब्जर्वेशन, द रूट्स ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स विल ग्रो टूवर्ड्स बीकर ए, क्योंकि बीकर ए में पानी था. सो एज सिंपल एज दैट, सिंस बीकर ए हैड वाटर, the seeds, the germinating seeds made their movement towards the water, and this we are now gonna call as hydrotropism. Okay, clear? इसको लिख लो, नोट कर लो कहीं पे, wherever you guys need. If the diagram is required, this is what you're gonna need. Any diagram in the exams, if you all are gonna draw, diagram के नीचे labeling is very important, just like this. कुछ नहीं, just whatever the title is given in your question, अगर वो भी लिख दिया, this gives you 1 mark, this gives you half mark, labeling वगैरह सारा चीज include करके. So this is your plus point that you can gain your marks over here. So now we are going to talk about the hormones in animals. Animals in general, because we are also evolved creatures, तो हम यहाँ कंसिडर करेंगे ह्यूमंस कि हमारे बॉडी में क्या क्या हॉर्मोन्स है that help us to grow या behavioral या anything that is going on around in our body इसका also controlled by hormones. Hormones भी बहुत important role play करते हैं हमारी बॉडी को बैलेंस्ड रखने में, हमारे बॉडी के फीचर्स फंक्शनिंग रखने में and everything. So we all remember the pituitary glands and hypothalamus जो हमने ब्रेन के longitudinal structure में बताया था एकदम स्टार्ट में. मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बॉडी के जो भी सारे हॉर्मोन्स होते हैं वो यहीं से हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होते हैं. लाइक देयर आर आल्सो अदर ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड है, देन पीनियल ग्लैंड है, देयर एड्रिनल ग्लैंड्स है, ये सारे ग्लैंड्स भी हार्मोन सेक्रेट करते हैं. बट मेजॉरिटी हॉर्मोन्स रिलीज करने का कमांड या हॉर्मोन्स रिलीज करना इटसेल्फ, वो सारी चीजें आती है हमारे हाइपोथैलेमस से. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. सो हमारे ब्रेन के जो भी हॉर्मोन्स है दे हेल्प अस टू कंट्रोल. जैसे कि इन दिस अगर आयोडीन नहीं है, लाइक यूजुअली आपसे हमेशा यू सी इन एडवर्टाइजमेंट्स क्या आपके नमक में आयोडीन है, हमारे पास है आयोडीन वाला नमक. क्यों नेसेसरी है आयोडीन, व्हाई डू यू नीड आयोडीन इन योर बॉडी, ये बताएगा. आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन. हमने पहले बता दिया कि हमें आयोडीन चाहिए हमारे नमक में. हमारे नमक में आयोडीन क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड को वो हेल्प करता है थायरॉक्सिन बनाने में. अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारा दैट रेगुलेट्स हमारे बॉडी के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट मेटाबॉलिज्म एंड एवरीथिंग एंड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ. इट प्रोवाइड्स द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ. कभी प्रोटीन ज्यादा एक्सेस में नहीं हो गया या फैट्स एक्सेस में नहीं हो गया, ये सारा काम कंट्रोल करने का है थायरॉक्सिन हार्मोन का, जो आया है हमारे पास थायराइड ग्लैंड से. अब आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, ये तो हमने देख लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया सारा. बट जस्ट इन केस अगर ये नहीं होगा हमारे पास तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं. If iodine is deficient in our body, in our diet, then there is a possibility of you getting a goiter. Goiter होता है जो नेक पे हमें swollen नेक देता है. यहाँ पे आयोडीन की कमी होने से ना गला सूज जाता है. बहुत सारे लोगों का देखा होगा आपने, यहाँ पे बुल नेक होती है. That is because of कमी of goiter. Whenever you see people like that, you are gonna remember. उनको बोलना नहीं पर दिमाग में याद करना कि हाँ उर्वी मैम ने पढ़ाया था goiter के बारे में. ठीक है. फिर ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स भी होते हैं. These growth promoting hormones are secreted by the pituitary glands. Now यहाँ पे आ गए हम वापस, ये रहा हमारा pituitary glands. So if यहाँ से हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स प्रमोट हो रहे हैं, these are the hormones जो आपका हाइट, बॉडी, ये सारी चीजें ग्रो होने में डिसाइड करता है.
हम ये भी देख लेते हैं कि डेफिशिएंसी, सी as its name indicates ग्रोथ हार्मोन। अब ये क्या करता है, रेगुलेट करता है आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बोला हाइट, बॉडी वेट, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय द ग्रोथ हार्मोन। अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो पॉसिबल चीजें हैं कि बच्चों में या अडल्ट्स में दिखेगा ड्वार्फिज्म। आपके ग्रोथ हार्मोन के कम होने से आपकी हाइट कम रह सकती है या बॉडी स्ट्रिंजेंट रह सकती है, छोटे रह सकते हो, बौने जिसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। और ये होता है हमारे ग्रोथ हार्मोन की कमी से। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने नहीं बताया कि भाई ग्रोथ हार्मोन कम है तो सेक्रीट करो हार्मोन्स, तो आपके ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है, आपको ड्वार्फिज्म हो सकता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि द पीपल अराउंड, जैसे प्यूबर्टी एज कहते हैं हम, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 12 to 13 समवट, वहां पे वी आर गोना नोटिस दैट गर्ल्स एंड बॉयज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। द मेजर हार्मोन्स दैट आर देयर वो है टेस्टोस्टेरॉन्स इन मेल्स। जो बॉयज होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरॉन्स इंक्रीज होता है और गर्ल्स में एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है। ओइस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन बोलते हैं इसको। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो फीमेल्स लाइक आफ्टर बीइंग अ किड, आफ्टर हिटिंग द प्यूबर्टी, वो आपको बताते हैं कि दैट यस these are the features in female that you're going to go through, you're going to grow through it, and these are the features in male that you're going to go through and you're going to grow through it. Okay, now if it is so important that hormones should be in precise quantity, yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। कोई भी हार्मोन ना कम ना ज्यादा, इट शुड बी इन वेरी प्रिसाइज एंड एडिक्वेट मैनर। तो ये कैसे होगा, क्यों, अगर बढ़ गया तो भी दिक्कत और कम हो गया तो भी दिक्कत। इसका एक एग्जांपल लेंगे हम इंसुलिन का। जैसे कि फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। सो जो हाइपोथैलेमस है हमारा, हाउ डू वी नो कि हमारे बॉडी को प्यास लग रहा है? जब गला सूखता है। गला एक्चुअली सूखता नहीं, इट इज वेट इनसाइड, बट हाइपोथैलेमस आपको वो रियलाइज कराता है दैट योर बॉडी नीड्स वाटर एंड यू नीड टू ड्रिंक वाटर राइट नाउ। सो सेम, जैसे ही बॉडी में कोई हार्मोन्स की कमी होती है, आपके जो भी ग्लैंड्स है बॉडी में, जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे एड्रिनल या पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, ये सारे इंडिकेट करते हैं बॉडी को टू रिलीज दोज हार्मोन्स दैट आर रिक्वायर्ड। बट अगर हार्मोन्स भी एक्सेस में रिलीज हो गए, देन द काउंटर प्रोडक्ट इज मोर, फिर वो आपका जाएगा फीडबैक से, फिर वो बोलेगा कि हाँ हार्मोन्स का जो काम हो चुका है दैट इज डन, नाउ आई डोंट नीड माय हार्मोन्स टू बी सेक्रेटेड, सो स्टॉप दिस सेक्रेशन। द बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक इज फॉर शुगर लेवल्स। अब हमें सबको पता है कि शुगर बढ़ती है तो डायबिटीज होता है, ऐसा नहीं। साइंस वाले बच्चे हो, वी आर गोना यूज द टर्म एज hypoglycemic and hyperglycemic. Okay, so these are the terms that we are going to use. अगर शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं हमारे बॉडी में, आर बॉडी डिटेक्ट्स इट, द सेल्स डिटेक्ट कौन करता है? पैनक्रिया के सेल्स। फिर पैनक्रिया के सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं उससे बाय प्रोडक्शन ऑफ मोर इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या करता है ना, वो जो शुगर होते हैं उससे कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बना देता है। ओके, सो योर शुगर इज बैलेंस्ड। लेकिन अगर आपके बॉडी में शुगर आ ही नहीं रहा है, लाइक बहुत लो लेवल्स है एंड ऊपर से इंसुलिन तो सेक्रीट होते ही जा रहा है एंड इट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इट इनटू द ग्लाइकोजन, तो वो भी गलत है। सो देन अगेन योर सिस्टम विल टेल कि भाई इंसुलिन सेक्रेशन रिड्यूस कर दो। नाउ वी आर बैलेंस्ड विथ शुगर, वी कैन रिड्यूस द सेक्रेशन। ओके, क्लियर इतना सबको? सो रिवाइज करेंगे फटाफट, क्विक। सो वी स्टार्टेड विद द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑफ ह्यूमंस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, वन इज ब्रेन एंड द अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर ब्रेन के हमने देखे 3 पार्ट्स, फोर, मिड एंड हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन और इन तीनों के फंक्शंस भी हमने देख लिए थे, करेक्ट। देन वी मूव ऑन टू द नर्व इम्पल्सेस, न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस, इनके बीच में सिनेप्टिक गैप्स या इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जिसे कहा जाता है, हमने वो भी देख लिया। देन वी सॉ अबाउट कि सारे हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड,
इज प्रोटेक्टेड बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में होता है एंड द क्रेनियम अबाउट इट, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय द वर्टेब्रल कॉलम जो है वो, ठीक, यहां तक सब क्लियर। आफ्टर दैट हमने बात की प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था मिमोसा का, द फोल्डिंग ऑफ लीव्स बट नॉट, दैट इज नॉट द मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है। फिर एग्जांपल था प्लांट्स का दैट रूट और शूट, एक सीड होता है जो ग्रो होता है सैपलिंग्स में जिसके रूट शूट निकलते, दैट इज द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। फिर मूवमेंट के भी हमने 4 टाइप्स देखे, जियोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म एंड फोटोट्रॉफिज्म विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, ओके। देन हमने प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के 4 हार्मोन्स, 2 ग्रोथ हार्मोन्स, कौन से, फटाफट, ऑक्सिन, जिबरेलिन। देन सेल डिवीजन वाला हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन, एंड देन ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए है हमारे पास एब्सिसिक एसिड, ओके। उसके बाद हम आए ह्यूमंस पे कि ह्यूमंस में हमें कौन से हार्मोन्स चाहिए। सो अगेन लाइक दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल, ह्यूमंस में बहुत सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं आयोडीन वाले, कि हमें थायरॉक्सिन इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड के, जो थायराइड ग्लैंड से आता है, जो हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल्स, जैसे आयोडीन के लेवल्स मेंटेन करता है, जिससे हमें गॉइटर नहीं होता। अगर आयोडीन कम हो गया तो गॉइटर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जो हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी वेट, हाइट, एवरीथिंग मॉनिटर करता है, जो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर ये कम हो जाएगा तो हमें ड्वार्फिज्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने नोटिस किया है कि प्यूबर्टी में बॉयज एंड गर्ल्स में टेस्टोस्टेरॉन्स और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी होता है, और उसके क्या क्या विजुअलिटीज होते हैं वो देखे हमने। आफ्टर दैट हमने ये भी डिस्कस किया कि प्रिसीजन ऑफ द हार्मोन क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी को सिक्रीट करने के लिए। फिर बॉडी कैसे डिटेक्ट करता है कि हार्मोन कब सेक्रीट करना है, बाय फीडबैक मैकेनिज्म, ये भी हो गया। एंड देन उसका एग्जांपल में हमने डाल दिया था द इंसुलिन सेक्रीशन शुगर के लिए, क्लियर।